अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। अच्छा जी, वी स्टार्ट अगेन। सर आप वेट कर जाएं, 6:15 का टाइम था तो अभी आ रहे हैं बच्चे। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चलो 5 मिनट और, 2 मिनट रह गए। तो फिर भी क्लास इसीलिए लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग ना सुने ना हम। दैट इज गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलो भाई, हो गए सब अच्छे। Now in this chapter 6.1 of the book, we have to explore derivative and its properties. And although derivability is a point phenomena, that means we explore the derivative of any given function at a particular point. But our concern now is derivability over an interval. Over an interval, continuity is over closed interval. Continuity is already explored, and now we have to explore derivability. So if we have a function which is defined over an interval AB, and f prime at A, that means a right-hand derivative at A exists, then f is derivable at the end. And similarly, if you look at the derivability at the right-hand point, we take the left-hand derivative at B, right-hand derivative at A, and every other point inside, that is interior points of the closed interval AB, अगर function differentiable है तो हम कहते हैं कि function is differentiable over the entire closed interval. Now, f is derivable only at each of the interior point, then f is derivable on the upper interval. At times, we don't have right-hand derivative available at the left-hand point, and at times we don't have left-hand derivative available at the right-hand point. In that case, if the function is derivable at every interior point of the interval AB, then we say that the function is differentiable or derivable over the interval AB. तो सर इसका मतलब ये है कि हम लोग ए के अराउंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे और बी के अराउंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, राइट? At A right hand derivative और at B left hand derivative. लेफ्ट हैंड पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करते हैं और हर इंटीरियर पॉइंट पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम कहते हैं कि एंटायर क्लोज इंटरवल पर फंक्शन डेरिवेबल है। ठीक है, तो और सर ये इक्वल भी होने चाहिए दोनों? नहीं 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 नहीं, वो तो किसी इंटीरियर पॉइंट पर जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तब होगा ना इक्वल। आजकल आप लोगों ने मुझे भी चस्का लगा दिया। अच्छी प्रैक्टिस होती चली आ रही है मेरी इस वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल। सर हमें भी अच्छा समझ आ रहा है व्हाइट बोर्ड से। अरे पता नहीं, अब आसान चीजें आ रही हैं। एनीवेज क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना।
Now derivative means you're talking about the graph of the function, and you're talking about geometrical. I hope the geometrical interpretation, you know that derivative represent the tangent. तो मेरे पास अगर एक क्लोज इंटरवल है तो इंटीरियर पॉइंट्स पे टेंजेंट एग्जिस्ट करते हो, एंड टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, और टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड हैज द सेम वैल्यू, देन इट इज डिफरेंशिएबल. तो हमने जो अब नया तरीका इस्तेमाल किया है, which is brief. C is some point in the interior of the interval, closed interval AB. तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट C यूं लिख रहे हैं, और इसका मतलब है लिमिट x approaches C from right side of fx minus fc divided by x minus c. एंड राइट हैंड का मतलब है, यानी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट c माइनस डेल्टा, c प्लस डेल्टा, नेबरहुड ऑफ c where delta is small. लेफ्ट हैंड पे काम करने का मतलब है यू आर इन दिस रीजन, एंड this should be written in then as limit delta approaches 0 of fc minus delta minus fc divided by x, x replaced by c minus delta. So c is x replaced by c minus delta, c cancel out, and whenever we work out left hand derivative at any point c, we'll be working out this limit. और जब मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा किसी पॉइंट पर, तो अब मैं इस पूरे प्रोसेस को छोड़ के सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि लिमिट डेल्टा अप्रोचेस 0 ऑफ एफ सी प्लस डेल्टा माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई ओनली डेल्टा, क्योंकि अब सी प्लस डेल्टा रखेंगे तो सी पॉजिटिव डेल्टा आएगा. So working out this limit in this part, if this limit exists, it is the left-hand derivative at C. Working out in this part, finding out this limit, and then there is this right hand. तो अब जब हम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट पे तो दोनों साइड्स अवेलेबल हैं. If function is not defined, for example, this is not part of the graph of the function, this is not part of the graph of function terminates here, function graph terminates here, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से तो वर्कआउट कर सकता हूँ ये लिमिट, मगर एट लेफ्ट हैंड पॉइंट राइट हैंड साइड से कर सकता हूँ, एट राइट हैंड पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से कर सकता हूँ. तो राइट हैंड साइड पे फंक्शन, राइट हैंड पॉइंट की राइट साइड पे फंक्शन अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट हैंड पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फंक्शन अवेलेबल नहीं है. तो एक साइड का डेरिवेटिव लूंगा, यानी इस चीज की जो लिमिट निकालूंगा मैं फ्रॉम वन साइड. So left derivative at f prime at a cannot be available at a. लेफ्ट साइड पे फंक्शन नहीं है इसलिए नहीं. इसी तरह राइट साइड f prime at a at b, sorry, b के राइट पे फंक्शन अवेलेबल नहीं है. So this cannot be obtained. Yes, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव और right hand point पे left hand derivative. So this will be then limit delta approaches 0, right hand derivative के नीचे positive delta है, तो f a plus delta minus f a divided by delta, और right hand point b पे मैं left side से limit ले सकता हूँ. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब b माइनस डेल्टा माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा. ना तुमने कमेंट किया था कि ये दोनों बराबर होंगे, नहीं,
ये राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे इवेल्युएट हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस एंड पॉइंट पे इवेल्युएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड का डेरिवेटिव अवेलेबल है। इंटीरियर पॉइंट्स पे हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कंसीडर करेंगे, और f is derivable at interior point C if this left derivative at C equals right derivative at C. So that is the basic idea of function being derivable at a point, function being derivable at over the whole interval. तो अगर ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, फॉर ईच सी बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी, ये भी सब है, देन हम कहते हैं कि पूरे इंटरवल पर फंक्शन डिराइवेबल है। बट इफ वी कंसीडर ओनली ओपन इंटरवल ए बी, यानी अब ए और बी पे काम नहीं करेंगे, and if function is differentiable at every interior point of the open interval AB, then function is derivable or differentiable over the open interval. That is what was being considered there. So going back, ये कुछ वर्कआउट किए हुए हैं हमने प्रॉब्लम्स कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। अब इंटरवल दिया हुआ 0, 1, हमने इंटीरियर पॉइंट कंसीडर किए, यानी वो पॉइंट्स जो 0 और 1 के बीच में हैं, और उस पॉइंट का नाम कह दिया C, एंड C कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का ये तरीका है, इसको सिंप्लीफाई किया। फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, सो फंक्शन इज C माइनस डेल्टा होल स्क्वायर, C माइनस डेल्टा होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके लिमिट निकाली तो 2C आ गई। Right hand derivative and C plus delta will be used. So function is x square, so C plus delta whole square. Simplify करके उसकी लिमिट निकाली तो वो भी 2C आई। So for every interior point, the left hand derivative and the right hand derivative are same. Now what about left end point where I work out the right hand derivative? It comes out to be 0. What about the right hand point and I consider the left hand derivative? 1 minus delta इस्तेमाल करके, and we get this. Of course, for x square, derivative at 0 is 0 and derivative at 1 is 2. Now this function, of course, is derivable for the whole closed interval. अच्छा, ये एग्जाम्पल्स तो चूँकि तुम्हारे पास नोट्स में हैं, तुम देख लेना, मैं ये वाली अभी डिस्कस करता हूँ। I consider another example. सर अगर हमारे पास जो है राइट एंड पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन ओपन इंटरवल पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव होगा ओपन इंटरवल में एंड नॉट इन क्लोज इंटरवल। जी बिल्कुल जी, किसी भी एक एंड पॉइंट पर अगर आपको वन साइडेड डेरिवेटिव जो आप निकाल रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या है कि ये हर इंटीरियर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। अच्छा जी, एक क्लासिकल एग्जांपल है जो एलिमेंट्री लेवल पर डिस्कस करते हैं हम कि a function is defined piecewise. I hope you have experience of functions defined piecewise. यस सर, क्या हाल वन में पढ़ा था। ठीक है ना? So I consider this function and I have to discuss anything is the at the break point. Sorry, ये जो है ये 1 है। So जब तक x की वैल्यू 0 से 1 तक है तो हम आउटपुट निकालेंगे x स्क्वायर से, और जैसे ही 1 से बड़ी होगी x की वैल्यू और अप टू 2 हम इससे निकालेंगे। And we are going to discuss this function or analyze this function at x equal to 1. Now when I use the term analyze,
What does it mean? Analyze f at x is equal to 1. So analysis जो है उसका पहला हिस्सा तो ये कि what is the value of the function. So we have to look कि जो हमें डोमेन दिया हुआ है उसमें x is equal to 1 किस हिस्से में है, पहले पीस में है कि दूसरे पीस में है. So x is equal to 1 is a part of the first piece. So I will use 1 whole square, so the function value. So value of f at x is equal to a. Analysis का दूसरा काम क्या है? Limit x approaches 1 from left hand side of the function. That means limit delta approaches 0 and x replaced by 1 के लेफ्ट साइड पे 1 माइनस डेल्टा. सो डोमेन का वो हिस्सा जो 1 के लेफ्ट पे है वो फर्स्ट पीस है. वहां पे फंक्शन का फॉर्मूला ये है कि जो भी इनपुट है उसको स्क्वायर कर दो. सो लिमिट डेल्टा अप्रोचेस 0 ऑफ 1 माइनस डेल्टा होल स्क्वायर, अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके डेल्टा की टर्म्स को इग्नोर करके दिस कम्स आउट टू बी 1. I hope I don't need to expand and show you that how it is 1. So पहला पॉइंट एनालिसिस का था कि वैल्यू क्या है, दूसरा पॉइंट ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या है एज x अप्रोचेस 1, तीसरा पॉइंट है कि x अप्रोचेस 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड दैट मीन्स आई हैव टू वर्क ऑन 1 प्लस डेल्टा. So f of 1 plus delta. Now to 1 plus delta is in this part, second part of the domain, where I have to use the formula for function values के input को cube कर दो. So 1 minus 3 delta, of course यहाँ पे limit आएगा, plus 3 delta square minus delta cube, and when we apply limit, now we see that this is the left hand limit, this is the right hand limit. सर आपने 1 माइनस डेल्टा को क्यूब क्यों किया है? 1 माइनस डेल्टा क्यूब क्यों है? हाँ 1 प्लस डेल्टा करना है. Thank you. Working out on the right hand side, of course, 1 plus delta. अच्छा जी, तो अब तक तीन चीजें क्या कैलकुलेट की हमने? वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. आर दे ऑल इक्वल? यस दे आर. सो दैट मीन्स व्हाट? दैट इज कंटिन्यूटी at x is equal to 1. The function is continuous at x is equal to 1. The next task in the analysis of function is to evaluate the left derivative at 1. And left derivative at 1 means limit delta approaches 0 of f1 minus delta minus f1 divided by minus delta. To the left of 1, the function behaves as x square, so जो input है उसका square ले लें. 1 minus delta whole square. What's the function value at 1? That is 1 divided by minus delta. So working out this limit, 1 minus 2 delta plus delta square minus 1 divided by minus delta. So this 1 cancel out. Minus delta taken common, 2 minus delta, and that gives me 2. I hope you have lots of experience. अगर नहीं है तो अभी करवा दूंगा इसी सेमेस्टर में. The next few days. The right hand derivative means limit delta approaches 0 of f1 plus delta minus f of 1 divided by delta is equal to limit delta approaches 0
1 plus delta. Right side of 1 function is behaving as cubic function. Minus function value at 1 is the same, divided by delta, and limit delta approaches 0 of 1 plus 3 delta plus 3 delta square plus delta cube minus 1 divided by delta. So 1 cancel out, delta taken positive, and the limit comes out to be 3. So what is our conclusion about left-hand derivative and right-hand derivative? They are not equal. They're not equal. So this is an example, another example of a function which is continuous at a point but not differentiable. और अगर इसके ग्राफ पे गौर करेंगे आप, तो यहाँ 1 तक तो पैराबोलिक है, उसके बाद क्यूबिक है. तो ग्राफ जब बनाओगे तो तुम्हें चेंज ऑफ टेंजेंट का अंदाजा आसानी से नहीं होगा. यहाँ पे 2 है और इस तरफ से आए तो 3 है, बिकॉज क्यूबिक फंक्शन इज रैपिडली राइजिंग. और अगर इस फंक्शन का डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखना चाहो, व्हाट्स द डेरिवेटिव x स्क्वायर? 2x. 3x. 2x. Derivative of 3x square, x cube. 3x square. 3x square. So derivative is behaving as this function in this open interval and behaving as this function in the other interval. तो अगर x approaches 1 है, from left hand side तो 2 आएगा, from right hand side 3 आएगा. So left side to right side से हमारे tangent, which is the derivative, is different. So this analysis now completes. Value of the function, left limit of the function, right limit of the function, left hand derivative of the function, right hand derivative of the function. अब अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि whether a function is continuous or not at a point, तो इसका मतलब है आप ये 3 काम करेंगे. अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कि whether a function is differentiable at a given point, तो आप ये 2 काम करेंगे. In this case, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कंटिन्यूटी. एक पॉइंट पर लेफ्ट कंटिन्यूस, राइट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट द पॉइंट. अगर लेफ्ट और राइट दोनों है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर है और फंक्शन वैल्यू डिफरेंट है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. So we have studied discontinuities. Now we are more concerned about existence of these limits. The left-hand derivative limit. जी. हम लोग यहाँ पे एनालिसिस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 कर रहे थे. अगर सिर्फ एनालिसिस पूछते, कंटिन्यूटी के बारे में नहीं पूछते और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सवाल में नहीं पूछा होता, सिर्फ एनालिसिस के बारे में पूछा होता x इज इक्वल्स टू 2 या x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो उस केस में हम लोग यही एनालिसिस करके दिखाते या नहीं? मैंने इस वक्त लफ्ज़ एनालिसिस इस्तेमाल किया है इस सेंस के लिए कि अब तक हम जो कुछ सीख चुके हैं फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में, जब मैं एनालिसिस का की टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये है कि देखो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, देखो कि फंक्शन डिराइवेबल है या नहीं. अभी इस एनालिसिस में मजीद इजाफे होंगे. ठीक है? ओके. सो गोइंग back to our notes, mod x and अगर mod x का ग्राफ तुम लोगों के जहन में हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि mod x का ग्राफ जो है वो ऐसा ग्राफ है. सॉरी, ये लाइन भी, दिस इज y इज इक्वल टू x एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x. ये mod x का ग्राफ है. राइट साइड पे 1 डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड पे -1 डेरिवेटिव. So we have been asked that it's not derivable at x is equal to 0. तो हमें ग्राफिकली नहीं, हमें एनालिटिकली करके देखना है. एनालिटिकली करके देखने का मतलब है कि I will be working with the left hand derivative of this function at 0, and that means I have to evaluate limit delta approaches 0 of f of 0 minus delta minus f of 0 divided by minus delta. अब limit delta approaches 0 means what? For this, now on the left hand side, input को क्या करना है?
Oh, thanks God. I'm back. Everything was all right, but मेरे इंटरनेट की बत्ती गुम हो गई थी और साथ ही साथ वो सब कुछ मैंने लिखा था वो भी गुम हो गया. तो I was just trying to point out कि मैं जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इवेल्युएट करूंगा, तो f of 0 minus delta minus f of 0 divided by minus delta. तो लेफ्ट हैंड साइड पे ओके, फॉरगेट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मैं 0 माइनस डेल्टा पे फंक्शन की वैल्यू लिखना चाहता हूँ. तो मॉड लगा हुआ है 0 माइनस डेल्टा माइनस function value at 0 is 0 divided by minus delta. So what happens? The limit mod की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा रह जाएगा, जिससे लिमिट -1 आ जाएगी. इसी तरह राइट साइड पे 0 प्लस डेल्टा से करोगे तो +1 आ जाएगी. So this is a classical example where we show that function is not derivable, absolute value function. अब absolute value function कैसा भी हो, for example, इसको मैं ऑन ही रखूँ यार. For example, मैं दे दूँ तुम्हें function mod x minus 2, तो किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? Can anybody tell me that this function will not be derivable at what point? X equals to 2. That's good. Let us make things more complicated. X minus 1 plus x plus 2. ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिराइवेबल नहीं होगा? X equals 1 and minus 2. 1 and minus 2. Okay. So let us look at this example. X squared sine 1 upon x. Function behaves as this when x is not 0, and we define it as having output 0 when x is 0, और हमने show ये करना है कि derivable है. अच्छा साहब, derivability means मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, blah blah blah. But once we are clear about the left hand derivative और right hand derivative क्या हैं, we take a little liberty. हम सिर्फ fx minus f0 divided by x minus 0 लिमिट निकालते हैं for derivability. So when I consider this function for fx, x square into sine 1 upon x minus function value at 0 is 0 divided by x minus 0, which is x. Now this x and this x square cancel out, and this is x sine 1 upon x. अब इस फंक्शन पे गौर करो तो तुम्हें इसकी लिमिट कैसे अंदाजा होगा कि 0 है? दिस लिमिट इज 0 बिकॉज x की लिमिट अलग निकाली गई है और साइन ऑफ 1 अपॉन x की लिमिट अलग निकाली गई है. This x approaches 0 as x approaches 0. But this approaches what? When x is 0, this is 1 upon 0, that is infinity, and the sign value may be anywhere between -1 and 1. लेकिन finite होगी. So इस function की लिमिट 0, इस function की लिमिट non-zero या possibly 0, even then the product is 0. So हमने left hand और right hand के बजाय हमने directly derivative limit निकाली है. हम ये देखना चाहते हैं कि इस फंक्शन का डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखे हैं, लीविंग आउट कि x इज इक्वल टू 0 पे 0 है. तो इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट आएगा. सो यानी फंक्शन का डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाला, जैसे पहले भी मैंने एग्जांपल में निकाला था. तो x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव निकाला. इस पार्ट की लिमिट फिर वही
x की लिमिट 0 और sin 1/x की लिमिट 0 से 1, जिसको मैंने t लिखा है, और 1/0 इन्फिनिटी, तो ये भी t होगा। तो इस पार्ट की लिमिट 0 है, इस पार्ट की लिमिट t है, एंड t कैन बी बिटवीन 0 and 1। अब अगर मैंने ये काम किया, क्या काम किया, एक तो हमने डिराइवेबल फंक्शन की ओरिजिनल डेफिनेशन इस्तेमाल की और सारे टूल्स इस्तेमाल किए, उससे हमें डेरिवेटिव पता चला कि एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखकर उस डेरिवेटिव की लिमिट निकाली x अप्रोचेस 0, तो वो लिमिट पता चला कि minus of ti, that where t is any number between -1 and 1, इसका मतलब ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। So what has been shown here in this example can be summarized like this. When I work out limit x approaches a of fx minus fa divided by x minus a from left and right, I am actually talking about इसके existence implies derivability, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिराइवेबल है। मगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना मुझे आता है। मैंने क्या किया, x² sin 1/x का डेरिवेटिव निकाला, और मैं ये भूल गया कि ये था फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 था। इस पार्ट को मैंने निगलेक्ट कर दिया और डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाला। जब मैंने डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाला और उसके बाद इसकी लिमिट ली x अप्रोचेस 0, तो मुझे पता चला कि ये डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेसेस डिफरेंट है। दिस कैन एग्जिस्ट, दिस मे नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मॉड x अभी हमने डिस्कस किया। पीस वाइज इसका डेफिनेशन है x when x is greater than or equal to 0 minus x when x is less than 0। इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव -1 है। तो यहां पे तो चल रहा है काम। हमने जब वर्कआउट की लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लिमिट डेल्टा अप्रोचेस 0 ऑफ मॉड 0 माइनस डेल्टा माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा, इससे ये -1 आया, यानी लेफ्ट डेरिवेटिव, और राइट डेरिवेटिव 1 आया। तो इस एग्जाम्पल में तो सही था ये, लेकिन इस एग्जाम्पल में यानी ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, ये हमने f प्राइम लिया और f प्राइम पर ये आया f प्राइम, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, ये आया लेफ्ट, ये डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ डिफरेंट, तो वो ओरिजिनली भी डिफरेंट थे। मगर इस एग्जाम्पल में जो अभी हमने डिस्कस की ये वाली है, इसमें लिमिट x अप्रोचेस 0 of x² sin 1/x minus 0 divided by x minus 0 exists, but limit x approaches 0 of f prime x does not exist। तो अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आता है और मैं वो डेरिवेटिव लेकर उस पर लिमिट लगाऊं, आई एम नॉट डूइंग अप्रोप्रिएट थिंग। समटाइम्स इट विल वर्क, एट अदर टाइम्स इट विल नॉट वर्क। सो डिराइवेबिलिटी करने का मतलब के लिए मुझे ये लिमिट इवेल्युएट करनी ही करनी है। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट एग्जाम्पल। ओके, ये कल जब तुम लोगों ने कहा कि साहब हाथ से लिखें, तो मैंने एक फंक्शन, एक थ्योरम डिस्कस की थी, फंक्शन विच इज डिराइवेबल एट x इक्वल टू c, इट इज नेसेसरीली कंटिन्यूअस देयर। डिराइवेबिलिटी किसी सी पे मतलब ये है कि लिमिट ये वाली
this limit exists that we write as f prime c. तो हमने कहा था ओके स्टार्ट विद कंसिडरिंग एफ एक्स माइनस एफ सी और इसको एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और फिर दोनों साइड पे लिमिट लगा दी एज एक्स अप्रोचेस सी. राइट साइड पे इस चीज़ की लिमिट अलग लिखी, इस चीज़ की लिमिट अलग लिखी. ये जो है एफ एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, इसकी लिमिट एज एक्स अप्रोचेस सी इज द डेरिवेटिव एफ प्राइम सी, जिसके बारे में हाइपोथेसिस है कि फंक्शन डेरिवेबल है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है. Whereas limit x minus c as x approaches c is 0, so f prime c into 0 is 0. इसका मतलब है limit of fx minus fc, जिससे कि मैंने काम शुरू किया था, that is 0. And that means limit fx as x approaches c is same as fc. इस limiting process का इस number पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये constant है. Now when limit of the function at some point is same as the value of the function is continuous. So whenever a function is derivable, it is necessarily continuous. The converse is not necessarily true. यानी अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिराइवेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ये नीचे एक छोटा सा 2-3 लाइनों में एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि वाइस्ट्रास ने ये फंक्शन डिस्कवर किया था which is continuous everywhere but not differentiable anywhere. यानी कंटिन्यूटी तो हर पॉइंट पे है इसकी, लेकिन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. मैं इस फंक्शन इसकी एनालिसिस, इस फंक्शन की एनालिसिस हमारे इस कोर्स के स्कोप से दूर है. वी हैव टू लर्न अ लॉट बिफोर वी कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम. मगर मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल दिखाता हूँ. I have a straight line segment. I choose 2 points at some distance. जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऐसा जिससे कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए. ठीक है जी. इसके बाद मैंने इरेजर उठाया, ये साफ कर दिया और इरेजर को वापस रखूं. ओके, इरेजर को वापस रख दिया मैंने. यार ये तो गड़बड़ हो गए. फ्री राइटिंग ये. यस. अब मैंने इसके 3 हिस्से किए. देखो ये इरेजर मेरी मर्जी से चलता है कि नहीं चलता? नहीं चल रहा, मेरी मर्जी से नहीं चल रहा ये इरेजर. मगर तुम ये इमेजिन करो कि ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको गायब कर दो और यहाँ पर एक और राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल खड़ी कर दो. मैंने कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं किया था, इसको छोड़ दो. अब मैंने इस बेस लाइन से शुरू किया और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई. उसके बाद इसको छोड़ दिया. अब मेरा कर्व है ये. इन दोनों साइड्स के मिडिल थर्ड जो है उनको मैंने साफ करना है और ये एंड ये मेरा कर्व है. अब इस कर्व के हर जो लाइन सेगमेंट है वो सेम लेंथ की है. इनमें से हर में से 1/3 साफ कर दो बीच का. 1/3 हर एक लाइन सेगमेंट से साफ कर दो और ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया. और जहां जहां तुमने बीच का हिस्सा 1/3 साफ किया है वहां वहां इक्विलेटरल ट्रायंगल खड़े करते चले जाओ. थ्योरेटिकली हम इस प्रोसेस को इन्फिनिट टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. सर ये हम कर क्यों रहे हैं? ट्रायंगल में ट्रायंगल पे ट्रायंगल में ट्रायंगल. सर ये रिकर्जन है ना? हाँ ये रिकर्जन्स हैं और ऐसी रिकर्जन्स हैं कि एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के अंदर से हमने एक कर्व जनरेट करना शुरू कर दिया है. इस कर्व में हर जगह जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं.
आफ्टर सपोज 50 आइटरेशंस ऑफ दिस प्रोसेस इस तरह का कर्व होगा. आफ्टर सपोज 500 आइटरेशंस ये जो राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं उनकी जो वेरिएशन है मुझे नजर आना बंद हो जाएगी. आफ्टर 1 मिलियन आइटरेशंस मुझे ये कर्व जो है वो ऐसा नजर आना शुरू हो जाएगा जो मुझे बज़ाहिर स्मूथ लगेगा. लेकिन I take a microscope and look at this region, I will see this part. I take a microscope and look at still smaller region and I will see a version of this same. अब ये कर्व जो है चाहे मैंने 2 आइटरेशंस के 3 आइटरेशंस के बाद देखा है, 50 के बाद देखा है, 500 के 5 मिलियन आइटरेशंस के बाद देखा है, दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. मगर हर जगह मुझे गैप, बट दैट विल बी ऑब्टेन. हर जगह मुझे सडन चेंज नजर आएगा. यहां पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ये है, wherever there is sudden change of slope. यहां पे everywhere there will be point where there is sudden change of slope. ये तुम लोगों ने कभी ये लफ्ज सुना है, फ्रैक्टल? नो सर. यस सर, वो आर्ट्स वगैरह में भी यूज होता है. किसमें? छोटे छोटे पीसेस को लेके आर्टिस्ट में भी कोई फ्रैक्टल ड्राइंग होती है, छोटे छोटे पीसेस लेके ड्रॉ करते हैं जी. फ्रैक्टल्स जो हैं इन वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर लेवल पर सेल्फ सिमिलर होते हैं. लार्जर स्केल पे जो स्ट्रक्चर है वही स्मॉलर स्केल इसका स्ट्रक्चर होता है. एक कैंटर डस्ट का जिक्र शायद सुना हो तुम लोगों ने, कहीं सुना है? नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ. नहीं सुना सर. एक लाइन सेगमेंट लिया, मिडिल थर्ड उड़ा दिया इसका, फिर जो बाकी 2 लाइन सेगमेंट रह गए उनके मिडिल थर्ड उड़ा दिया. अब जितने लाइन सेगमेंट्स रह गए ये इन सब के मिडिल थर्ड उड़ा दो, फिर जितने लाइन सेगमेंट रह गए उनके मिडिल थर्ड उड़ा दो. अगर ये तुम 100 टाइम्स करते चले जाओ तो तुम्हारे पास एक सेट होगा जो वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट्स होगा, और हर उस लाइन सेगमेंट के मिडिल थर्ड को उड़ा दो, इन्फिनिट टाइम करो तो यू विल हैव पॉइंट्स which is set of points only, which is called Cantor dust. क्योंकि ये गर्द की तरह इस लाइन सेगमेंट पे कुछ पॉइंट रह जाएंगे. इसी तरह ये भी एक्सपेक्टेड. हाँ, इसका मकसद क्या है? कैंटर डस्ट तो ऐसी मेरे जहन में आ गया था, लेकिन इसका मकसद ये है कि इस तरह से डेवलप होने वाला जो फ्रैक्टल है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बिकॉज माइक्रोस्कोप से कहीं भी उठा के तुम देखोगे तो तुम्हें हर जगह ये सिचुएशन नजर आएगी, सडन चेंज ऑफ स्लोप. एक पावरफुल माइक्रोस्कोप आफ्टर डूइंग 1 मिलियन सच आइटरेशंस, तो यहां से जब तुम इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखोगे तो ऐसा नजर आएगा. स्टिल कुछ जगहों पे ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिट आइटरेशंस के बाद तुम्हें ये भी नजर नहीं आएगा. लेकिन हम अकल से सोच सकते हैं कि देयर विल एवरीवेयर बी एजेस, so differentiability will not be there wherever there are edges. So this is an example of development of a curve which is continuous everywhere but not differentiable anywhere. Weierstrass की जो example, how is हाँ बोलो. Sir, how is Cantor dust continuous? नहीं वो तो मैंने कहा कैंटर डस्ट का तो कैंटर डस्ट का तो मैं ऐसी फ्रैक्टल के नुक्ते नज़र से जहन में आ गया था कि अक्सर फ्रैक्टल की जो किताबें हैं ना वो कैंटर डस्ट जैसी एग्जाम्पल से शुरू होती हैं, और कैंटर डस्ट का सिर्फ मतलब ये है कि किसी भी माइक्रोस्कोप से तुम देखो, जिस जगह देखोगे every line segment is divided into 3 parts and middle third part is not there, that has been removed. That makes a Cantor dust. That is also a fractal. तो ये फ्रैक्टल्स जहाँ डिस्कस होते हैं वहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आता है, लेकिन ये जो फ्रैक्टल है ये फ्रैक्टल हमारी डिस्कशन से रेलेवेंट है कि इससे जो कर्व बनेगा वो हर जगह कंटिन्यूस होगा मगर किसी भी जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा. I introduced this example because in my notes it was mentioned कि
ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है। वाइटस्ट्रास ने फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन दिया था जो हर जगह कंटिन्यूस है लेकिन किसी जगह भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और मैंने कहा कि इसकी एनालिसिस जो है दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब मैंने थोड़ी पहले आपसे पूछा था कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा। मैं ग्राफ बना के भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव करके भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ब्ला ब्ला। Oh, it is already 7. I'll finish very soon. ये थ्योरम जो है इसको जरा इस पर गौर कीजिएगा खुद ही। मैंने लिखा है एक्सप्लोर इट योरसेल्फ। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 1/f भी डिफरेंशिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव जो आएगा वो -f' फंक्शन होल स्क्वायर। सो एक्सप्लोर इट योरसेल्फ। ये एक्सरसाइजेज हैं, सारे प्रॉब्लम्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये खासतौर पर थर्ड और फोर्थ जो है इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर कीजिए। और इसमें यहाँ से आप कहा गया कि ना सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है बल्कि फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव दोनों कंटिन्यूस भी हैं। सो ये जो है ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर ना लेना है इसको। जबकि ये जो फंक्शन है इसी तरह का फंक्शन है और पावर ख़त्म कर दी है बाहर से, और अब कहते हैं कि कंटिन्यूस तो है लेकिन डिराइवेबल नहीं बचा। इसको करने की कोशिश करना, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से काम शुरू करूँगा। इस एक्सरसाइज के चंद सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। विद दैट मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि जिस वक्त मैं डिस्कनेक्ट हुआ उसके बाद, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। ओके देन आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। और सर जी सर टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमारे? पता नहीं। ओके सर। जितना पढ़ा सकूंगा पढ़ा दूंगा बेटा। इस बुक के सही है सर। छठे चैप्टर पे तो पहुंच गया हूँ मैं इंशाल्लाह। जी सर, बहुत सारे हो गए हैं ऑलरेडी। 2-3 चैप्टर कम से कम और होंगे। अभी तो इंटीग्रेबिलिटी को हमने रिविजिट किया था इन द बिगिनिंग, शायद अगर नहीं किया था तो उसको तो हमने एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करना है। सर हमारे ट्यूटोरियल्स नहीं होते बिल्कुल भी। भैया आप ट्यूटोरियल के लिए अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर दो, जिस वक्त टाइम मिलेगा या तो मैं बीना को डांटूंगा या फिर मैं तुम्हें खुद जवाब दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे करो, इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना वो हो सकता है और भी लोगों का प्रॉब्लम हो। व्हाट्सएप करोगे और अगर मैथमेटिकल टेक्स्ट इन्वॉल्व हो रही है तुम्हारी क्वेरी में तो कागज के ऊपर लिखो, उसकी पिक लो और व्हाट्सएप कर दो। ठीक है ठीक है सर। और क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने तो वो कहाँ से करें? वो मैं बना रहा हूँ इस वीकेंड इंशाल्लाह, काफ़ी चीज़ें जमा ठीक है, हो थैंक यू गई। सर। ओके, अल्लाह।